Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video, we are going to learn some strategies, some tips which can be used by both class 9 and 10 students for improving their scores in their examinations, especially for 10 students for their board exams. So let's see. So, first thing which all of us should focus is that to read the book properly. Now, of course, this is very important because without reading the chapter, you cannot grab the things. So, sometimes in 10th, we do read, but in 9th, sometimes we skip the things, we don't read it properly. But it is important. So, in the first reading, just read the textbook word by word. Don't take any highlighter, any pencil, any pen, nothing. In the second reading, take a pencil in your hand, just mark important points, and after that, go through the previous year question papers. See what type of questions have been asked. In the third reading, now take a pen in your hand and क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर देख चुके हैं तो अब आपको आइडिया लग गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अब आप उन चीज़ों को मार्क करिए पेन से एंड इन द फोर्थ रीडिंग टेक अ हाइलाइटर एंड देन अगेन उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं अगर नहीं है तो आप उन पेन वाली चीज़ों को ही हाईलाइट कर सकते हैं सो इस तरह से आपको रीड करना है बुक को एंड मैं यहीं पे बता रही हूँ कि बुक एक दो बार रीड करने से नहीं होता है आपको कई बार एटलीस्ट रिविजन को भी अगर मैं उसमें ऐड कर लूँ तो आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स यू हैव टू रीड द चैप्टर अब आप बोलोगे कि हमेशा क्या हमें पूरा पूरा रीड करना है नहीं माई सजेशन विल बी दैट एटलीस्ट आप 4 to 5 टाइम्स आप रीडिंग वाले पोस्चर में रीड करो लेकिन उसके बाद राइट 6 टाइम के आगे से उसके बाद फिर आप उसको रिविजन वाले पॉइंट से याद करने की कोशिश करेंगे ठीक है कि मतलब आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हो अब आपको केवल रिवाइज करना है तो अब रिवाइज करने का मतलब ये नहीं है कि केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही उसमें आने चाहिए ऐसा नहीं है मतलब आप अगर नोट्स बनाते हैं अभी मैं उसके पे भी आऊँगी कि नोट्स कैसे बनाना है लेट्स सी दैट ऑल्सो मेकिंग नोट्स अब आप देख रहे हो मैंने ऊपर एक पिक डाली है विच आई हैव टेकन फ्रॉम माई इंग्लिश लिटरेचर बुक सो दिस इज वाई आई हैव टू दिस आई हैव केप्ट टू शो यू कि कैसे what I used to do. Like my way was that I used to highlight the things in the book itself because I my notes were not very comprehensive or I could not make such type of notes. But if you are good in that, I would recommend you can do that because in the exam time, reading the book is not so you know what should I say? Not so compatible. So better is that you should make a notebook where you should mark the notes correct now द सेम थिंग आई हैव रिटन हियर ऑल्सो कि या तो आप नोट्स बुक में इस तरह से मार्क कर सकते हैं कीवर्ड्स जो आपको अपने आंसर्स में लिखने हो इंक्लूड करना हो दैट्स इम्पॉर्टेंट or else you can make it in a other notebook also like this is from my English literature तो उसमें मुझे नोट्स की उतनी ज़रूरत नहीं है अलग से बनाने की बट लाइक बायो मैथ्स or in maths also some formulas and other things you can make a formula book same thing you can do for physics also you should do my recommendation will be that you should make a formula book where you should write all the formulas and one day before exam go through all the formulas rapidly so instead of going to chapter wise through the formulas all the formulas will be at one place you can easily go through them this is a good tip and you should do that right next question how to solve the previous year question papers my recommendation will be आप वॉच टाइमर जो भी है उसको लेकर बैठिए एज यू हैव टू मतलब सेम उसी तरह से जैसे आपको वहाँ एग्जाम हॉल में बैठना है अगर वॉच अलाउड नहीं होती है तो डोंट टेक वॉच जस्ट हैव अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ यू एंड डू अकॉर्डिंगली ओके सेट द आई मीन सी द टाइम 15 मिनट्स रीडिंग के लिए रखो रिविजन के लिए रखो एवरीथिंग सेम एंड कीप अ माइंड सेट दैट यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल नॉट लाइक कि आप लेट के एग्जाम लिख रहे हो नो ऐसा नहीं करना है एग्जैक्टली ऑन सिटिंग ऑन द टेबल टेक द पेन इन योर हैंड कॉपी शीट एवरीथिंग सेम इन द सेम मैनर give I mean write the paper previous year papers don't see the answers in the middle of the exam I mean middle of the practice at the end you see and give yourself marks according to the marking scheme this is also important we just see कि अच्छा चलो ये तो almost correct है no
और अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसको अपने टीचर से चेक करवा लीजिए. सो दे विल टेल यू योर मिस्टेक. ओके. Guidance from your subject teacher is very very crucial because they know what are the questions asked, how that questions are asked, how the marking scheme is. So you should always take the help of your teachers. They are very helpful. Okay, so try to take their help. And next and the last I have written that whenever you have to learn something, my recommendation will be that this should be done from the beginning, that you should try to learn something by writing it in that way, especially in chemistry. uh, in physics there are some formulas, all these things in physics, how to write the answers, all these things when you write and learn, easily the things get stored in your mind. अगर आप केवल हवा में याद करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में नहीं रहती हैं. So you should try to write and learn the things. Okay, this will be my suggestion. Okay, so now before ending, I would like to give you some more tips. Like whenever you solve the question paper, you should make a error book. एक एरर की बुक बनाइए. उसमें आप क्या करेंगे कि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, आप अपनी मिस्टेक्स देखते हो, उन मिस्टेक्स को उस एरर बुक पे लिखो, एरर कॉपी पे लिखो. एंड जस्ट ट्राई टू नो कि आपने वो गलती क्यों की है. कि आपको वो फॉर्मूला नहीं आता था, कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता था. और कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको वो एरर बार बार रिपीट नहीं करना. अगर वो रिपीट हो रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करिए, उसको ख़त्म करना है आपको. उसको अगर लेके बैठोगे तो वो एक झंझट बन जाएगा एंड यू विल बी इन ट्रबल इन द एंड, एट द एंड टाइम. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. उस एरर नोटबुक को एग्ज़ाम के पहले भी एक बार ज़रूर से देख लेना चाहिए. और टेस्ट हो, कोई भी मतलब छोटा मोटा कुछ उससे रिलेटेड अगर है तो वो चैप्टर उससे आप देख लीजिए कि मैंने अगर उससे कोई मिस्टेक की है या नहीं की है. उसको कहीं नोट करते जाओ. ऐसे नहीं कि अच्छा ठीक है हो गया अब नहीं भूलेंगे, नहीं, वो भूल जाता है. यू मेक द सेम मिस्टेक, सो डोंट डू दैट. Right? And any other thing? No, I think most of the things I have covered. And also extra questions practice करना is also very very crucial. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर से भी आपके पास बहुत सारे गूगल पे बहुत सारे पीडीएफ हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से जाके आप खोजो और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखो. सैम्पल क्वेश्चन पेपर देखो, दूसरे स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स खोजो, वो देखो. ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे भी आते हैं दूसरे स्कूल के, लेकिन अपने बोर्ड के, आईसीएससी बोर्ड के ही होने चाहिए. So try to solve those papers, those questions also. See if you can. सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत से क्वेश्चंस, बहुत से चैप्टर्स सेम होते हैं, उनके क्वेश्चंस को ट्राई करो. एमसीक्यूज स्पेशली, राइट? क्योंकि एमसीक्यू में कई बार उल्टे सीधे क्वेश्चन, आई मीन उल्टे सीधे इन द सेंस थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. सो ट्राई टू सी वेदर यू कैन, वेदर यू आर एबल टू डू दैट क्वेश्चन और नॉट, राइट? सो जितने ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने घुमावदार क्वेश्चन हो सकते हैं, सबको करने की कोशिश करना है. डोंट लीव एनी क्वेश्चन. फाइन. सो ऑल दीज थिंग्स. एंड अपने टीचर्स से गाइडेंस लेते रहना है, मतलब अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड. वेन एवर यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर क्वेश्चंस, एनी सोल्यूशन, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो तुरंत जाके उसे टीचर से क्लियर करवाना है. दिस कीप दिस इन योर माइंड. ओके. So I think this is all from my side, and I think this is something, these are some tips जो कि बहुत important है, जो हम सब ज़्यादातर skip कर देते हैं, हम नहीं ध्यान देते. तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है. ठीक है, और ये चीज़ शुरू से ध्यान देना है. ऐसा नहीं कि एंड के 2 महीने में आप कर रहे हो, उस समय बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि वो एक ऐसा समय होता है जब आपको अपने लिए रिवाइज करना होता है. एंड एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, जैसे स्कूल में हमारा सिलेबस जब भी ख़त्म हो, आई डजेंट मैटर, प्री बोर्ड के पहले ख़त्म हो या जब भी हो, डजेंट मैटर, योर ओन सिलेबस बाय योर सेल्फ शुड बी completed टिल अक्टूबर इन ऑल द सब्जेक्ट्स. ये आपको ध्यान रखना है. खुद से आपको गर्मी की छुट्टी 2 महीने की मिलती है, वो सब करके, और भी बीच में बहुत सारी छुट्टियां हो सकती हैं, उन सब में आपको कोशिश करना है कि अक्टूबर तक you have to complete your whole syllabus so that November completely you can use for your own revision. और करना है, केवल सोचना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि 1 महीना
इज़ लाइक बहुत अच्छे से आप उसका यूज़ कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में, क्योंकि आपके प्री बोर्ड्स होंगे तो वो उतना, क्योंकि प्री बोर्ड में बहुत जल्दी जल्दी एग्जाम्स होता है, तो विदाउट एनी गैप, आई मीन हॉलीडे, तो देयर फॉर यू शुड always try to uh, make this revision 1 month, मतलब 1 full month you should have for revision. एंड ऑफ कोर्स प्री बोर्ड्स जो आपके होते हैं उन सब में आपका रिविजन ही होता है बोर्ड से पहले, यू हैव 1 month ऑल्सो बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो use all this time for your preparation, for your revision is much more, it should be much more prioritized, and I will always say that सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए रिवीजन, क्योंकि चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाती हैं. बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैथ्स में बोलूँ, मैथ्स में मैं एक टिप आपको देना चाहती हूँ कि जब भी टीचर, ये आप हर सब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, बायो के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी, कि हमेशा बुक को सामने रखो, और कई बार टीचर ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता देते हैं, तो उसको साइड में कहीं स्क्रिबल कर लो, कहीं लिख लो, ठीक है. और क्या होगा कि जब भी आप पेज टर्न करोगे वो चीज़ साइड में ही होती है. आई थिंक बहुत सारी बुक्स थोड़ी बहुत जगह तो साइड साइड में होती ही है, उसमें आप उसको लिख सकते हैं. कोई फॉर्मूला है, मतलब आपने वो चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी उसको कहीं एंड पेज पे कहीं भी उसको नोट कर लीजिए, उस चैप्टर के एंड पेज पे वो नोट कर लो, तो जब भी आप बुक पलटोगे ना वो चीज़ सामने आएगी और खुद ही अपने आप याद होती जाती है. तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी tip है, which I would like to, I wanted to share with you. So please do this, okay? This is this will be helpful for you. और कोशिश होनी चाहिए कि उसका पेन से या किसी कलरफुल उससे कलर से लिख लो और उसको स्टार मार्क कर दो, ताकि वो एक जैसे स्टार मार्क वाली चीज़ों पे हमारी नज़र पड़ जाती है, और उसको आप देखोगे ही देखोगे. कोई क्वेश्चन मिल गया चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी बुक में नहीं दिया है, बट इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, इट कैन कम, सो प्लीज़ डू राइट इट. कोई पहले के पेपर में कोई क्वेश्चन आया है उसको बुक में लिख लो, तो जब भी वो चैप्टर पढ़ोगे वो क्वेश्चन सामने आएगा, एंड यू विल आंसर के साथ लिखो, ताकि वो चीज़ें आपको याद आपके सामने रहें. तो प्लीज़ डू दीज थिंग्स, एंड आई एम श्योर यू विल बी मतलब आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा, यू विल गेट सम help from this. So, thank you everyone for watching, and please share this with your friends so that they can also get some valuable suggestions from here. Okay, thank you.